हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 जो कि है चांदनी। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जो कि है चांदनी उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। ही was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats, which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kalua, Mungia, or Gujri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night, he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goat. Sorry. Very often at night, one of the goat would pull at the string. It broke loose and then would disappear in the hills beyond. Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. They loved their freedom. Abu Khan's goat were of the best hill breed. They too loved their freedom, so whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. Are these goats mad? He wondered, or was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship, even death. Abu Khan couldn't solve the mystery. One day, when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I will live without goats." However, the poor old man was terribly lonely. He simplified couldn't do without his pets. Very soon he bought a young goat. He thought, a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I gave her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. The new goat was very pretty. She was white as snow and had two little horns in her little head and a pair of gleaming red eyes. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. Abu Khan called her Chandni, which means moonlight. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, ही वॉज मिस्टेकन अगेन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक समय की बात है। एक ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा इंसान अल्मोड़ा नाम की जगह में क्या रहता था, ठीक है। और उसका नाम था अब्बू खान। वो पॉपुलर था उस नाम से, जिसका जो नाम था अब्बू खान, ठीक है। वो अकेले रहा करता था, एक पहाड़ी इलाके में अकेले रहा करता था, ठीक। उसके घर के सामने एक पहाड़ था, तो वो वहीं पे रहा करता था, ठीक है। और वो क्या सॉरी मतलब कि उसके घर में कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, वो अकेला था। और उसके पास कुछ गोट्स थी, उसके पास खुद की कुछ बकरियां थी। और कुछ नहीं, बहुत सारी बकरियां थी, ठीक है। और उनके क्या वो फ़नी नेम्स रखता था, जैसे कलुआ, मूंगिया और गुजरी, ठीक। तो ये सब क्या उसके नाम रखा करता था अपने गोट्स का, ठीक। फिर क्या होता था कि वो अपनी गोट्स को क्या करता था,
एक लंबी रस्सी से बांधा करता था, छोटी रस्सी से नहीं, लंबी रस्सी से। लंबी रस्सी से वो इसलिए बांधा करता था ताकि देखो, एक रूम में वो अपनी गोट्स को बंद करता था, तो उस रूम में वो इतनी बड़ी रस्सी से बांधा करता था कि वो जो गोट्स हैं वो इजीली पूरे रूम में टहल सके, ठीक है, ताकि मतलब कि वो अपनी उन गोट्स को अपनी बच्चियों की तरह रखता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर वो पूरे कमरे में टहल सके तो उनको खुला ही छोड़ दे, बांधे नहीं। वो इसलिए बांध देता था क्योंकि उस जैसा भी बताया, उसके घर के सामने क्या एक पहाड़ था, छोटा सा, छोटा नहीं, ऊंचा पहाड़ था, ठीक। और उस पहाड़ में क्या था कि बहुत सारी जूसी जूसी ग्रासेस थी, बहुत अच्छी ग्रास थी, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। तो इसकी जितनी भी बकरियाँ, जितनी भी गोट्स थी, उन सबको उस पहाड़ में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद हुआ करता था, पसंद होता था। और वहाँ की जो घास होती थी उसको खाने में इनको बहुत मज़ा आता था। तो अगर वो उसे खुला छोड़ देंगे तो क्या वो रात को ही पहाड़ में भाग जाएंगे, और पहाड़ में चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहाड़ में एक ओल्ड वुल्फ यानी एक बूढ़ा भेड़िया रहता है, ठीक है। और वो भेड़िया क्या करता है, वो इसकी जो बकरियां हैं वो उनको खा जाता है। और वो अपनी बकरियों से तो अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, तो वो अपनी बकरियों को मरने नहीं दे सकता, है ना। तो उसकी बहुत सारी जो बकरियां हैं वो उसी वुल्फ ने क्या, वही भेड़िया ने उसकी बकरियों को, बहुत सारी बकरियों को मार दिया है, ठीक। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होने लगा, उसकी सारी बकरियां जो थी वो कभी कभी मतलब कि वो लंबी रस्सी से बांधता था, लेकिन अगर कभी वो खुल जाए या रस्सी टूट जाए तो क्या होता था कि वो जो जो ये अब्बू खान की जो गोट है वो क्या, वो वहां से भाग जाती थी, और भाग जाने के बाद कहाँ, सीधा पहाड़ में जाती थी, और पहाड़ में जो भेड़िया बैठा वो उनको खा जाता था, उनको मार देता था। तो ऐसे धीरे धीरे कर मतलब उस अब्बू खान के पास बहुत सारी बकरियां थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो उसकी कलुआ, मूंगिया, गुजरी, ये जितनी भी बकरियां हैं, और भी सारी बहुत सारी बकरियां थी, वो सारी क्या, धीरे धीरे उसकी सारी गोट्स खत्म हो गई, सारी गोट्स मर गई, सारे गोट्स वुल्फ खा गए, मतलब गायब हुई हो गई, ठीक। फिर जो हमारा ये देखिए, जो बकरियां हैं ये कौन खा ले रहा है, ये एक वुल्फ है, पुराना वुल्फ, उसको इन बकरियों को पहाड़ में जा करके खा जाता था। फिर ये जो हमारा अब्बू खान है, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, ओल्ड मैन। फिर इसने बोला कि अब मैं कभी अपनी ज़िंदगी में क्या गोट्स दोबारा नहीं खरीदूंगा, ठीक। वो अकेले रहता था और वो काफ़ी बुढ़ा भी हो गया था, तो कह रहा मेरे को वैसे भी 4-5 साल के अंदर मर ही जाना है, यानी कि बहुत जल्दी मर भी जाना है, ठीक है। और अब वो क्या, अब गोट्स को वो बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्यों, गोट्स को मतलब कि वो गोट्स के साथ, बकरियों के साथ अपनी बच्चियों की तरह, अपने अपने बेटों की तरह, अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। फिर वो किसी दिन ऐसे भाग जाती थी, मर जाती थी, तो फिर उसको बिल्कुल भी अच्छा अच्छा नहीं लगता था, बहुत दुखी होता था। तो इसलिए क्या, उसने अब ये फैसला किया कि अब वो कभी गोट्स रखेगा नहीं। फिर अब जैसा कि पता चला, उसकी बीवी बच्चे तो कुछ थे ही नहीं, अकेले रहा करता था पूरे पहाड़ में, ठीक। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या, लोनली फील करने लगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगा। तो क्या किया उसने, एक गोट को खरीद लिया। एक बकरी को उसने क्या, फिर से खरीद लिया, वाइट कलर की बकरी खरीदी। उसके दो दो क्या थे, उसके हॉर्न्स थे, उसके छोटे से हेड में छोटे छोटे हॉर्न्स थे, और उसकी रेड कलर की आइज थी, ठीक है। तो ऐसे उसको खरीद लिया। फिर उसने सोचा कि अब मैं इसको मरने नहीं दूंगा। क्यों नहीं मरने दूंगा, क्योंकि जितनी भी इसकी पुरानी बकरियां थी, ये उसको कहाँ ले जाता था, पहाड़ में ले जाता था दिन टाइम को, क्योंकि दिन में तो भेड़िया आएगा नहीं। रात को जब निकलता था तो जो बकरियां थी उनका मन करता था कि पहाड़ में जाना, तो रात को भाग जाती थी। तो अब ये जो ये अब्बू खान है, ये सोचने लगा, इसने कहा कि अब मैं अपनी बकरियों को पहाड़ में ले ही नहीं जाऊंगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं इनको यहीं पे रखूंगा, यहीं पे इनको ग्रास रास खिलाऊंगा। तो अब्बू खान ने ऐसा ही करा, और उस बकरी का नाम अब्बू खान ने चांदनी रख दिया, और बोला चांदनी को कभी भी पहाड़ में नहीं ले जाऊंगा, जिससे क्या, इसकी जान बच जाएगी और ये जिंदा रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, अब्बू खान से क्या एक गलती हो जाती है, एक मिस्टेक हो जाती है। तो अब समझते हैं क्या मिस्टेक हो जाती है। Every morning, Chandni watched the hilltops bathed in the sunlight. How beautiful those hills are. She thought how refreshing the breeze that blows through them, and how lovely to run across those green fields. She ran towards the hills, but had to stop with a jerk. The rope rounded her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. Nor did she listen to his stories with interest and affection. She lost her appetite, grew very thin, and stared moodily and
at the hilltop bathed in sunlight. Abu Khan did not understand Chandni's anguish. At last, she decided to speak to him frankly. Dear Abu Khan, she said, let me go to the hills, please. If I stay on in your compound, I will die. Now Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. Why do you want to leave me, Chandni? Abu Khan asked. I want to go to the hills, Chandni answered. Don't you like the food here? I will give you tastier food and a much longer rope. Now thank you. Let me go to the hills. Do you realize the risk you are running? You obstinate creature. There is a dangerous wolf in the hills. He will eat you up. Abu Khan did his best to warn her. Chandni answered, God has given me a pair of horns. I will fight the wolf. Fight the wolf needed have fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalua, who was the size of a big deer? She fought and wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kalua's story for the 15th time. To all this, Chandni had only one thing to say. I want to go to the hills. Abu Khan got very annoyed. He thundered, you are not going anywhere. From today, you will live in a small hut and not move about freely in the compound. Ungrateful as you are, you must still be safe from the wolf. He pushed her into a small hut and shut the door, but he forgot to close the small window at the back. The same night, Chandni made that window her passage to freedom. तो फ्रेंड्स क्या हुआ, उसके बाद क्या होने लगा, जो चांदनी थी वो फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फिर बड़ी होने के साथ ही क्या होने लगा कि उस जैसा कि पता चला उसके घर के सामने क्या है, पहाड़ है। तो वो क्या, वो अपने घर के सामने बैठ कर के, अबू खान के घर के सामने बैठ कर के उस पहाड़ को क्या देखती रहती थी। सोचती थी वहाँ पे हवा कैसी चलती होगी, कितनी कितनी फ्रेशी एयर होगी, और वहाँ पे कितनी जूसी जूसी ग्रासेस होंगी, ब्रीज कितनी अच्छी होगी। तो उसका भी क्या मन करने लगा कि अब वो पहाड़ में जाए। तो वो अब्बू खान के पास गई, और अब बकरियां इंसान की भाषा में कैसे बात करे, तो वो क्या, बकरियां जो चांदनी थी उसने खाना खाना छोड़ दिया। अब्बू खान समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा क्या हो रहा, तो उसने क्या खाना खाना छोड़ दिया। खाना खाने छोड़ने के बाद क्या किया उसने, फिर वो बहुत ही मतलब कि बड़ी तो होने लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दुबली सी होने लगी, काफ़ी कमज़ोर से होने लगी। क्यों? क्योंकि तो खाना खाती नहीं थी। उसकी जो एपेटाइट थी वो मरने लगी। एपेटाइट मतलब कि जो उसकी भूख थी वो मरने लगी, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। तो अबू खान समझ गया कि इनकी क्या दिक्कत है। तो अबू खान ने बोला, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है चांदनी कि तुम हिल्स में जाओ। तो चांदनी ने बोला कि मुझे हिल में जाना है, मुझे पहाड़ में जाना, वहाँ की फ्रेशी एयर लेनी, लैंड ब्रीज लेना, जूसी ग्रास खानी है। तो जो अब्बू खान है वो कहने लगा कि वहाँ से अच्छी ग्रास मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाता हूँ मार्केट से, ताकि तुम उससे अच्छी ग्रास यहाँ पे खा लो और तुमको वहाँ जाना ना पड़े। तो जो चांदनी थे उसने बोला, अरे अब्बू खान, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन अब मेरे को जाने दो। मेरे को जाना है कहाँ पर, हिल टॉप में। अब मेरे को जाने दो। क्यों? अब मेरे को वहाँ पे जा कर के रहना है। तो जो अब्बू खान है उसने चांदनी को वार्न करा कि वहाँ पर एक ओल्ड वुल्फ रहता है। तुमने अपनी बहनों की कहानी नहीं सुनी क्या? तो वो तुम्हें खा जाएगा। तो जो चांदनी थी उसने बोला, अरे अबू खान, तुम मुझे जानते नहीं हो। भगवान ने मेरे को दो हॉर्न्स यानी दो सींग दिए हैं। अब इनसे मैं वुल्स को हरा दूंगी आसानी से। तो जो हमारा अबू खान था उसने बोला, क्या तुम्हें याद नहीं है अपनी बड़ी बहन कलुआ की कहानी सुन के? कलुआ एक साइज में एक डियर जितनी, एक मतलब कि जो एक हिरन होते हैं उसके जितने, हिरन जितनी साइज की वो गोट थी कलुआ। उसने वो भी क्या, वो भी चली गई थी कहाँ पे, पहाड़ में, और जाकर के रात को लड़ी, और अगले दिन क्या, उसकी डेड बॉडी मिली, यानी कि वो मरी हुई मिली। तो जो
चांदनी थी वो एकदम लड़ाई करने लगी। और जो अब्बू खान है उसने उसको डांटा चिल्लाया और उसके बाद कहा कि तुम्हारी जितनी आज़ादी है सब बंद। और उसको क्या एक छोटे से हट में बंद कर दिया गया और गेट को लॉक कर दिया गया। लेकिन अब्बू खान से यहाँ पर एक गलती हो गई, ये मान लीजिए कि उसने विंडो को बंद करना भूल गया। विंडो नहीं बंद करा तो चांदनी ने सोचा कि उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो आज़ादी है, उसकी आज़ादी का जो रास्ता है वो इसी विंडो से होकर के जाता था। लेकिन चा होकर जाएगा। लेकिन चांदनी को ये नहीं पता कि ये उसकी आज़ादी का नहीं, उसकी मौत का रास्ता है। तो चलिए हम आप लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? चांदनी रीच द हिल्स। इट सीम्स टू हर दैट द ओल्ड हिल्स was standing in a row to welcome her. She felt like a child meeting her parents after years of separation. Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. She met a herd of wild goats who asked her to join their group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. The sun disappeared behind the hills, and soon darkness enveloped the grass, the flowers, and the trees. The wind stopped blowing, and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. The sound was like a grunt. What was it? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another goat. Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. She felt scared. Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? No, she said to herself, death is an open field is far better than life in a small hut. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chandni. His eyes were shining like burning coals in the darkness. He seemed in no hurry. He knew the new goat was his. The wolf and the goat seized up each other. The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. But small is not weak. Chandi stood firm on her legs, head slightly bent, and horns jutting out. She was a picture of a courage. She looked like a brave soldier ready to fight. A treacherous enemy. I must put up a good fight. Chani thought success or failure is a matter of luck or chance. The fight began. It went on through the night. The moon, which had been watching the fight, began to grow pale and suddenly hid behind the clouds. The stars also began to disappear one by one. A faint light appeared in the east, and the morning call for prayer came from a distant mosque. The first rays of the sun saw Chandis lying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? One of them asked. The wolf, of course. Most of them said. A wise old bird declaimed with confidence, चांदनी इज द विनर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फिर क्या होने लगा, चांदनी जैसे अब खिड़की से भागी तो भागने के बाद क्या वो सीधे पहुंच गई कहाँ पर? चांदनी सीधे पहुंच गई
कहाँ पहुंची चांदनी? चांदनी सीधे पहुंच गए हिल्स में। हिल्स में जाते ही क्या हुआ, दिन के समय हिल्स में पहुंच गई। तो वहाँ पे क्या होने लगा, उसको बहुत मज़ा आने लगा, काफ़ी अच्छी अभी हवा चल रही थी। रे बाई रे यानी कि माउंटेन्स उसको क्या वेलकम करने के लिए पड़ा खड़ा था। ठीक, और उसको ही लग रहा था कि वो जितना भी समय उसने जिया है अभी तक, वो सब बेकार है इस मूवमेंट के आगे। ठीक है। और वो बोले थी कहाँ मैं अबू खान की छोटी से कंपाउंड में रहा करती थी, अब देखो मैं कहाँ इतने हिल्स में रहने आई हूँ। तो फिर क्या होने लगा कि उसके बाद क्या हुआ कि वो जो हमारी बकरी है चांदी, वो वहाँ पे खूब खेलने लगी, ग्रास के साथ खेलने लगी। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक वाइल्ड गोट का, यानी कि जो वाइल्ड गोट्स होती हैं, उनका क्या एक ग्रुप आया। ठीक, सॉरी, उन ग्रुप के आने के बाद क्या हुआ कि उस ग्रुप में कहा कि चांदनी को कि चांदनी आओ तुम हमको क्या ज्वाइन कर लो। लेकिन जो चांदनी थी उसने कहा चांदनी ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, बोला मैं नहीं तुम्हारे ज्वाइन करूँगी। और वो अपनी फ्रीडम को क्या अपने हर सेल्फ यानी कि अपने खुद से ही क्या करने लगी, खुद से ही इंजॉय करने लगी। ठीक, खुद से ही एक्सप्लोर करने लगी अपने फ्रीडम को। फिर क्या हुआ, फिर रात हो गई, सारे जो बर्ड्स गाना गा रहे थे सब बंद हो गया। ठीक, बस खाली पेड़ की बुशेस की आवाज़ आ रही थी, हवा चलने की आवाज़ आ रही थी। ठीक, फिर क्या होने लगा, चंद्रमा निकल आया, मून निकल आया। फिर क्या हुआ, एक अचानक से एक आवाज़ निकल कर आई। ठीक, ऐसे आऊ करके आवाज़ आई। ठीक, और उसको चांदनी को लगा ये किसकी आवाज़ हो सकती है, शायद ये उस ओल्ड वुल्फ की तो आवाज़ नहीं। तो फिर चांदनी काफ़ी डर गई। चांदनी ने सोचा क्या मैं वापस से अब्बू खान के कंपाउंड में भाग जाऊं। लेकिन फिर चांदनी ने सोचा कि एक छोटे से हट में रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और वो उसने ये डिसाइड करा कि अब वो वुल्फ से जाकर के फाइट करेगी। तो उसने क्या किया, अपने पैर को मतलब कि एकदम रेडी पोजीशन में आ गई, अपने सर को नीचे करा, अपने हॉर्न्स को जूटिंग आउट करा, यानी अपने हॉर्न्स को बाहर निकाला, और वुल्फ से लड़ने के लिए तैयार हो गई। और जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हो गई, दोनों लड़ने लगे। इतनी लड़ाई हुई, घमासान युद्ध होने लगा। फिर क्या हुआ कि जो चांद था वो क्लाउड्स के पीछे चला गया। फिर क्लाउड्स आ गए, तो जो हमारा स्टार्स हो गए, ये सारे क्या छुप गए, काली रात हो गई। फिर थोड़ी देर बाद क्या मतलब कि बहुत घंटे तक लड़ाई चली। उसके बाद क्या होने लगा, जो सन है वो निकलने लगा। और पहाड़ के ऊपर जो पहली किरण पड़ी सन की, वो चांदनी के ऊपर पड़ी। और चांदनी के ऊपर जब पड़ी तो चांदनी क्या थी, चांदनी ग्राउंड में लेटी हुई थी, ग्राउंड में पड़ी हुई थी। और वो पूरी खून से सोक्ड थी, यानी खून से सनी हुई थी, यानी खून में पूरी लिपट गई थी। ठीक है, उसके बॉडी में हर जगह खून ही खून था। और वो थोड़ा और सनलाइट आई, रोशनी में, फिर पता चला कि जो हमारा वुल्फ है वो काफ़ी थक गया है, वो काफ़ी स्लीपी हो गया, काफ़ी सोने मतलब कि उसको काफ़ी नींद आने लगी क्योंकि रात भर लड़ाई करी है। और वो जो हमारा वुल्फ है अब वो बकरी को खाने जा रहा था। फिर वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आ गई, वो आकर के इसमें डिबेट करने लगी कि कौन विनर है, कौन विनर है। तो बहुत सारी जो यंग विनर्स थी, वो मतलब कि यंग बर्ड्स थी, तो वो यही कह रही थी कि जो वुल्फ है वो विनर है। लेकिन जो वहाँ पर एक ओल्ड बर्ड थी, जो एक पुरानी ओल्ड वाइस बर्ड थी, उसने बोला, बस इतना बोला, चांदनी इज़ द विनर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चांदनी इज़ द विनर।